and we will talk about something which makes sense to all of you, which is something which you can implement tomorrow onwards if you wish to. I might also request you to keep your videos on so I don't get this weird feeling of talking to my own screen, right? Sometimes, I mean, we all have gone through difficult times, and sometimes conducting these sessions virtually can be a challenge. But just feel free to keep your videos on. If you're sitting at home also, no problem. If your child pet comes and sits in the video, don't worry about it. Don't apologize, because we are invading their space, right? So I intend to keep this session extremely. Can I request somebody to be on the mute? Thanks. So I'm requesting all of you to keep your videos on so that we can interact. I'm requesting you to say that. So what I'm going to do is that I learned in Marathi medium, and so I'm not very good in either English, and being a true Mumbai person, I'm also scared of Hindi. So I'll keep breaking between English and Hindi. You must pardon my limitations of my language, and we will make it meaningful for all of you. So my first question is that I'm talking to a set of entrepreneurs who have dreams and who have ideas, and they are working on their ideas, all of you. And first of all, my salute to all of you, because you have some passion about what you're working on. What does the word resilience mean? हम लोग ना ये बहुत बड़े-बड़े शब्द बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा उसका मतलब जान ले, फिर बाद में करते हैं. How to build resilience is the second step. लेकिन पहले ये तो एग्री करते हैं कि resilience होता क्या है? I mean, just feel free to answer. I'm not asking for exact definition, but what comes to your mind when you say the word resilience? उसका मतलब क्या है? I think it is something for a startup to be strong enough to face any calamities which anything can bring upon itself. Wonderful. What else? Fantastic. Thank you. Who else? What else? Anybody else wants to give it a shot? What is resilience? ये शब्द का मतलब क्या है? Ability to come back. Absolutely. Yep. Ability to come back. In fact, science का एक definition है कि resilience means the property of a material that enables it to resume its original form after a huge impact. वो scientific definition है resilience का. So आपने जो बोला वो बहुत सही है कि how do you really bounce back? In simple words, how do you really bounce back? और मैंने मेरा corporate job छोड़ के करीबन 7 years back I started my own consulting practice. And when you are on your own, a lot of things don't go the way you want them to go. There are always surprises. There are always things that you never planned for. And I'm going to share some bit of work based on my work, what I have done as a research, my own experiences, and I'm going to do this session through storytelling. So पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि resilience build क्यों करना है? Resilience क्या है ये तो हमको समझ गए. Resilience build क्यों करना है? But I want to keep it very practical for you so that you can do something if you decide to do on Monday onwards based on this session. So resilience important क्यों है? क्यों करना है build resilience? Sir, sir, resilience is a property generally. Sir, it is a metaphor for the language. If you see the language, but as a mechanical person, resilience is a very important property of a material science, in material science. Sure. Stress level, when in iron, stress level is increased due to some of the external forces. But if the iron will return its property and back to its original position, then we generally talk that iron is good, steel is good. बहुत बढ़िया. So if you apply same way, in entrepreneur life, stress is there always, but that stress should be positive such a way, positiveness should come in such a way that we feel our resilience, we are intact with our property. We are not losing any of our property. Very important factor. Very, very, very well said, sir. So ये resilience का होता क्या है? जब आपने अपना खुद का entrepreneurship चालू किया, जब मैंने खुद का चालू किया, तो बहुत लोगों ने सोचा मैं बड़े सिंपल ट्रेडिशनल फैमिली से आता हूँ. सो हम जॉब करने वाले लोग होते हैं.
तो ये जब नौकरी छोड़ के ये सब चालू किया तो पहला सवाल किसी को पता है किसको? कैन somebody guess what is the first question that people asked me when I left my corporate job, which was fairly well paying, and started on my own? What is the first question which people asked? Can you guess? Why you left? Why do you left? ये बड़ा शरीफ सवाल हुआ, why do you left? But लोगों ने बड़ा, मतलब एक ही रिएक्शन होता है लोगों का। आप सब लोग एंटरप्रेन्योर है, आपको खुद का बिजनेस करते हो, तो आपको भी ये सवाल पूछा गया होगा। क्या पूछते हैं लोग मैंने आप खुद का चालू करते हो तो? ये बिजनेस अपने बस की बात नहीं है। बिजनेस आपके बस की बात नहीं है, ये क्या कर रहे हो, पागल हो क्या, नौकरी छोड़ के, पगार छोड़ के, ये क्या भूत सवार है? बट अनलेस यू आर रियली excited about something, you can't do business, right? And when you start business, there's a dream, there's an idea, there's a passion. Then you start on that, and as you start working on that idea, you realize the world is little different than what we thought. हमको जो चीजें लगी थी उससे थोड़ा ज्यादा दुनिया थोड़ी अलग है। मुश्किलें आती है, प्रेशर्स आते हैं, और जो सर ने बात किया ना अशोक सर से, दो चीजें होती है। एक तो प्रेशर एक्सटर्नली आता है, लेकिन बहुत बार प्रेशर हमारे इंटरनली भी आता है। और इंटरनली किस चीज का प्रेशर होता है? क्योंकि हम लोग सब फैमिली लोग रहते हैं, हमारा अपना खुद का एक लाइफ रहता है। और जब आप खुद का बिजनेस करते हो, एंटरप्रेन्योरशिप करते हो, तो आप ये सोचते हैं, अरे भाई मैं ये कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले रहा हूँ, क्या इससे मेरी फैमिली को तकलीफ होगी, या थोड़ा जॉब कर लेता। ये बहुत से जो अंदरूनी सवाल होते हैं कभी कभी, वो भी उतने ही परेशान करते हैं जितना एक्सटर्नल प्रेशर परेशान करता है। सो जो प्रेशर होता है वो हैंडल करने के लिए रेजिलियंस की जरूरत है। और ये रेजिलियंस का मतलब, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ गोइंग ऑन योर पाथ? बिकॉज आपने जब बिजनेस चालू किया तो एक आइडिया था आपका मन में कि ये आइडिया काम होना चाहिए, ये आइडिया के बारे में आपका पैशन था ना। वो जो जुनून है वो जिंदा कैसे रखना है, दैट इज व्हाट रेजिलियंस इज ऑल अबाउट, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। But before I talk about what is resilience and how to build resilience, I'm going to give you some very research practical tools of how do you build resilience, and we will debate that. You don't have to agree with what I am saying just because I am saying it. Okay, you can question what you don't agree. Before that, कुछ चीजें होती है, there are some things which come in the way of resilience. Okay, कुछ ऐसी चीजें होती है जो आपकी आदतें होती है जो रेजिलियंस बिल्ड करने के बीच में एक मुश्किलें पैदा करते हैं। कैन somebody give it a try कि क्या ऐसी आदतें हैं? मैं आपको बताऊंगा 3 आदतें होती है जो सबसे खतरनाक रहती है। वो I mean they are very dangerous if you are building your resilience. Can somebody guess what are those habits if you are that come in the way of your resilience? क्या हो सकता है? और आप I think one of the most important thing is not accepting the facts. यानी maybe staying in dreams and not accepting the facts and not seeing what is going around. बहुत बढ़िया कि not accepting the facts and staying in your own world in a cocoon. That's brilliantly said. Fantastic. Yes. What else comes in the way of resilience? क्या आता है resilience build करने के बीच में? लेने के लिए we are not able to take the challenge. सब कभी चैलेंज ले नहीं पाते। इतने सब एंटरप्रेन्योर से ये कॉल पे, मेरे ख्याल से 15 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर से, बहुत लोग हैं, 20 से ज्यादा लोग हैं। आप बताइए रेजिलियंस और आपके बीच में क्या आ सकता है? कौन सी चीज आ सकती है? Compromise. Just tell me a little more interesting point. If you are ready to just accept what happens, so as it is, you want to just run the life. जो अभिजीत जी ने बोला समटाइम बैक कि हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। और दूसरा आप बोल रहे हैं कि हम लोग जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अच्छा ये नहीं होगा भैया, या ऐसे ही होगा। बोथ आर प्रॉब्लम्स। Am I right? Is that a correct thing I got? So मेरे ख्याल से ना रेजिलियंस बिल्ड, I mean, what are the 3 different things which, in my opinion and in my observation, that come in the way of building resilience over a long period of time are 3 habits. One is every time the stress that I have to be the smartest wherever I am. Okay. Sometimes हम लोग इस चीज का बड़ा टेंशन लेते हैं कि I have to be the smartest all the time. Okay. दूसरी चीज है I have to be the strongest. मैं किसी चीज से हिल नहीं पाना चाहिए। I have to be the strongest. I have to be the smartest.
एंड थर्ड चीज है कि आई हैव टू विन एवरी बैटल। जो भी मैं बैटल ले लूंगा हाथ में वो मुझे जीतना ही है ना। अपरेंटली ये तीनों चीजें बुरी है नहीं। I have to be the smart. Being smart is not bad. Being strong is not bad. And winning every battle is also not bad. Then how do these things come in the way of building resilience? I will share something with you. क्या होता है कि when आपका बहुत ध्यान, when your concentration is more on am I being perceived as smart by other people? Am I being smartest in the group? आप इतने conscious हो जाते हो कि it impacts significantly your ability to observe. It impacts significantly your ability to learn from others because you are out there to prove that I am the smartest wherever I am. Okay? And हम लोग बोलते हैं कि नहीं कंपटीशन में ऐसे ही करना पड़ता है। तो मैं listen to me carefully and then we will debate whether what I am saying is making sense or not. तो पहली चीज जो है जो स्ट्रेस देती है, अशोक सर ने बाहर के स्ट्रेस की बात की, मैं अंदर के स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ। पहली चीज जो अंदर से स्ट्रेस देती है that I have to be smartest all the time, I have to prove my point all the time. That is one thing which will always give you stress because you will not listen to others, you will not learn from others because you are very very conscious कि मुझे बस I have to be the smartest. The second thing is that I have to be strongest person. Okay, ना उसमें बुरी कोई बात नहीं, कोई आपको वीक होने के लिए बोल नहीं रहा है, लेकिन सबसे बढ़िया चीज है when you need help, okay, we always hesitate to ask help. Okay, we also always hesitate to ask help. Do you agree? Do you not agree? हम लोग हेल्प मांगने में हिचकिचाते हैं। हम लोग क्यों हिचकिचाते हैं हेल्प मांगने में? Sometimes yes. Yeah, sometimes yes. So why? Why do we hesitate to ask for help when we need help? Fear that they may not be in a position to help us. Okay, so somebody may not be in a position to help us. That's a fear. Okay, perfect. Okay. Sometimes ego comes in between. What else? एक सबसे बड़ा डर रहता है, the biggest fear people carry in their mind is that I will be looked upon as incapable or I will be looked upon as a weak person by somebody else. Okay? मैं पिछले 10 साल से यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, अफ्रीका, इंडिया में सैकड़ों लीडर से बात करता आया हूं और मैं उनको हमेशा पूछता हूं कि कोई अगर आपको आके एक मैं सवाल उनको पूछता हूं जो मैं आपको आज भी पूछूंगा। सपोज आप रास्ते से जा रहे हो, आपने एक हाथ पकड़ा हुआ है 80 साल के बूढ़े पिताजी का और दूसरा हाथ पकड़ा है 8 साल के आपके छोटे बच्चे का, और रास्ते में जाते जाते दोनों सडनली गिर गए। 80 साल के पिताजी और 8 साल का बच्चा दोनों गिर गए। आप पहला हाथ किसको दोगे? डिफिकल्ट सवाल, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, आई नो, बट पहला इंस्टिंक्टिवली आप किसका हाथ पकड़ोगे? किसको? बच्चों का, पिताजी का, बच्चों का, किसका हाथ पकड़ोगे? 80 साल के बूढ़े भी गिर गए, 8 साल का बच्चा भी गिर गया, किसको पहले उठाओगे? सर मेरा तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से मैं 80 साल को पकड़ लूंगा पहले। बच्चों को थोड़ा रियायती दूंगा क्योंकि उड़ जाएगा। तो सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये सवाल मैंने करीबन सैकड़ों लोगों से पूछा है और उनमें से 90% लोगों ने या 95% लोगों ने मुझे जवाब दिया है, हम लोग पहले 80 साल के बूढ़े को उठाएंगे क्योंकि बच्चे को तो हम बताएंगे अरे उठ जाओ अपने आप, बी स्ट्रॉन्ग। ओके, सो हमारे जहन में एक बात रहती है कि जिसको मदद चाहिए वो वीक है। ओके, तो हम वीक नहीं होना चाहते तो हम मदद नहीं मांग सकते। ये हमारी बात जहन में इतनी घुस गई है कि हमें जब मदद चाहिए भी होती है हम मदद नहीं मांगेंगे, हम शर्मा करते हैं मदद मांगने के लिए। Whereas actually if you ask people to help you, people feel nice. I mean, I will ask you a very simple question. When you help somebody, how do you feel? You feel nice? Yes, nice. Then why absolutely yes. Why do you not want to give that feeling to others? It is so easy to make others happy, right? When you ask help, मैं एक बहुत सीधा सा एक बहुत पर्सनल चीज बताता हूँ। मेरी माँ जब बीमार थी और
उनके अंतिम दिन नजदीक आए थे, तो हमेशा अपने तबीयत के बारे में बात करती थी, अच्छा मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन जिस दिन मैं उनको अगर बोलूं कि माँ थोड़ा ना मुझे अभी परेशानी हो रही है बिजनेस में, या थोड़ा मैं परेशान हूँ, टेंशन में हूँ, उनका पूरा दर्द और बीमारी चली जाती थी। और उसके बाद वो मुझे अगले 10 मिनट लेक्चर देती थी कि मैं कैसे स्ट्रांग होना चाहिए, मैंने कैसे कैसे क्या क्या किया है जिंदगी में, क्या कर सकता हूँ। सो शी वॉज हेल्पिंग मी, एंड व्हेन शी वॉज हेल्पिंग मी शी यूज्ड टू फील वेरी नाइस अबाउट इट, जस्ट लाइक वी फील। सो व्हेन यू नीड हेल्प, लोग आपके बारे में बुरा नहीं सोचते, ये नहीं सोचते कि आप वीक हो। लोगों को मदद करना अच्छा लगता है और वो मौका आप उनको देना चाहिए जब मदद चाहिए। अब मराठी में एक कहावत है कि देने वाले के हाथ 1000 है लेकिन हमारी झोली दुबली है, राइट? वो एक मराठी में बहुत पुरानी कहावत है। सो द वन थिंग व्हिच कम्स इन द एंड स्पेशली फॉर एंटरप्रेन्योर्स, इफ यू आर स्टार्टिंग न्यू, वन थिंग यू शुड नेवर बी अशेम्ड ऑफ इज जाके किसी से मदद मांगनी हो तो मैं जाके मदद मांगूंगा, क्योंकि मुझे नहीं आती ये चीजें, मुझे बड़े बड़े सवाल है और हर एक चीज पे पैसा डालने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैं मदद मांगूंगा, मैं लोगों से सवाल पूछूंगा। ज्यादा से ज्यादा बुरा ये होगा कि लोग मुझ पे हंसेंगे, उससे बुरा कुछ नहीं होता है, बट मैं मदद मांगूंगा पक्का। बिकॉज हमारा जो ईगो है वो जब बीच में आता है तो वो रेजिलियंस के बीच में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपके प्रॉब्लम आप लेके जीते रहते हैं और उसकी जरूरत नहीं होती। तीसरी चीज ये होती है कि you don't have to win all the battles, okay? If you really want to build resilience, you need to understand what are the things that you should let go. मैं बहुत एक सीधा सा आपको एग्जांपल देता हूं। आपने आपका बिजनेस चालू किया है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आपको बहुत पढ़ाई भी करनी है आपके टेक्नोलॉजी के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में, और आजकल व्हाट्सएप भी रहता है, ओके? अभी व्हाट्सएप पे सभी के स्कूल के ग्रुप्स है, फैमिली के ग्रुप्स है, कॉलेज के ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स है। और वो व्हाट्सएप पे कोई तो चालू करता है, पॉलिटिकल डिबेट चालू करता है, ओके, कि ये पार्टी अच्छी है, ये नहीं है, और फिर हम लोग घुस जाते हैं उसमें। कैसे इसको भी मैं सबक सिखाऊंगा, वो कैसा गलत है मैं दिखाऊंगा। और मैंने बड़े बड़े लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, बड़े होशियार लोगों को व्हाट्सएप पे झगड़े करते हुए देखे किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिसका आपसे कोई लेना देना है नहीं। सो प्लीज चूज योर, मैंने बहुत पर्पसली बहुत सिंपल एग्जांपल दिया है। कभी कभी ऐसा होता है आपके बिजनेस डील्स में, आपको पता रहता है कि ये बंदा मुझसे थोड़ा 2% ज्यादा उठा रहा है, अगर मैं और थोड़ा उसको स्क्वीज करूं तो 2% मैं निकाल पाऊंगा उससे। उस टाइम आपको ये सोचना है कि ये 2% उससे स्क्वीज करने के लिए मुझे और कितना टाइम बर्बाद करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में बहुत बार क्या होता है, आपका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप वो जो 2% दे देते हो उसको वो एक आ जाता है, चलो मैंने ये बैटल जीत लिया, मैंने ज्यादा पैसा कमा लिया, उसको जीतने दो बैटल, बिकॉज आपका टाइम उतना इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इफ यू ट्राई टू विन एवरी बैटल यू विल वेस्ट सो मच एनर्जी। आपको हर बार आपको एक सवाल पूछना है कि अभी ज्यादा जरूरी क्या है, मेरी अर्जेंसी है या मैं रुक सकता हूं। अगर मैं रुक सकता हूं तो ठीक है, मैं निगोशिएट करता बैठूंगा, लेकिन अगर मुझे अर्जेंसी है, ये टाइम जो बर्बाद हो रहा है उससे मेरा ज्यादा नुकसान होने वाला है, तो ठीक है, मैं जानता हूं कि वो 2% ज्यादा बना रहा है, लेकिन मैं उसको बनाने दूंगा। आई डोंट हैव टू विन दैट बैटल। सो इफ यू वांट टू बिल्ड रेजिलियंस, 3 things that should not come in the way. One is that you don't have to be the smartest all the time. You don't have to be the strongest person all the time. Ask help when you want, and you don't have to win all the battles. So this is basically clearing the hurdles when you building the resilience. अभी रेजिलियंस बिल्ड करना मतलब क्या करना है, कैसे रेजिलियंस बिल्ड करना है, उसके चार फैक्टर्स होते हैं, और मैं एक एक करके आपसे बात करूंगा। आप सब लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो पहली चीज है विजन, ओके? पहली चीज है विजन। और ये विजन हमें बड़ा शब्द लगता है बहुत बार, अच्छा ये विजन बड़ा कंपनी के वॉल पे लिखने वाली चीज है, हमें तो भाई रोज की स्ट्रगल करनी है, विजन क्या होता है, ऐसे नहीं होता है। विजन इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके? मैं आपको 2-3 अभी सवाल पूछूंगा, ये भी देखना है क्योंकि मुझे बताया गया है आप लंच करके यहाँ बैठे हो तो सब सुन रहे हैं कि नहीं, ये भी मुझे टेस्ट करना है। तो मैं आपको 2-3 सवाल पूछूंगा, आपको पहचानना में किसके बारे में बात कर रहा हूँ। एक जनाब थे जिन्होंने, वो आप होटल में जाते हो तो फ्रंट डेस्क पे जो क्लार्क खड़ा रहता है, बुकिंग क्लार्क,
वो एक जनाब थे, वो बुकिंग क्लर्क थे शिमला के होटल में, और वो एक दिन अपनी बेटी को बोले, और वो बुकिंग क्लर्क थे, नौकरी कर रहे थे होटल में फ्रंट डेस्क पे, अपने बेटी को एक दिन बोले कि रानी, जब जिधर भी दुनिया में जाओगी अपने होटल में अपना बर्थडे सेलिब्रेट करोगी. Now just imagine, this is a simple guy who is working in a hotel on the front desk and he is telling his daughter, एक दिन दुनिया में जहां भी जाओ अपना बर्थडे हमारे होटल में सेलिब्रेट करोगे. And he actually did that in the lifetime, in his one single lifetime. Does anybody know who is this person? No, sir. ओबेरॉय होटल का नाम सुना है? Yes, yes, yes. मोहन सिंह ओबेरॉय इज द पर्सन. ओके, एक बड़ी कंपनी जिसके बारे में आपने तो पक्का सुना है. आई कैन गारंटी, आई कैन पुट मनी ऑन, देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन इन दिस कॉल हु हैज नॉट हर्ड अबाउट दिस कंपनी. ओके, लेकिन ये कंपनी 500 लोगों की थी, उनके सिर्फ 500 लोग थे एम्प्लॉइज, और उनके प्रोडक्ट उनके देश में भी पूरे नहीं जा रहे. उस दिन उन्होंने अपना एक विजन बनाया कि एक दिन हम लोग पूरी दुनिया में हमारे कंट्री के प्रोडक्ट्स का इमेज बदल देंगे. द प्रोडक्ट्स फ्रॉम आवर कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज टॉप क्लास क्वालिटी प्रोडक्ट्स इन द होल वर्ल्ड. और जब ये विजन उन्होंने डिक्लेयर किया, लिखा, क्योंकि ये उनके रिकॉर्ड्स में है, तो उनका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ सिर्फ 500 था, उनके प्रोडक्ट्स देश में भी नहीं जा रहे थे, और उनके 2 ही प्रोडक्ट सक्सेसफुल हुए थे. एक जो रेडी टू ईट बीन सूप पेस्ट होता है, और दूसरा होता है एक हीटिंग पैड. हीटिंग पैड मतलब कोई नहीं, एक कॉइल बाहर से उसको एक कॉटन का बैग रहता है. ये 2 ही प्रोडक्ट उनके सक्सेसफुल हुए थे. लेकिन उन्होंने ये बात कही थी, ये विजन कहा था कि एक दिन हम दुनिया का नक्शा बदल देंगे, हमारे देश के जो प्रोडक्ट आते हैं उसकी क्वालिटी का नक्शा बदल देंगे. तो इट साउंड्स वेरी हिलेरियस. कैन यू नो व्हिच इज दिस कंपनी? डू यू नो? कैन एनीबॉडी गेस? और आप सब ये कंपनी को जानते हो. पतंजलि. पतंजलि अभी तक उधर पहुंचा नहीं है. अभी देश में उसका एक्नॉलेजमेंट है, अभी विदेशों में उतना हुआ नहीं है. बट यस, आई होप. Yes, Vyomkesh, you were saying something. Toyota. You are very close. You are very close. It is the Japanese company called Sony. Has everybody heard about Sony? Yes, yes. It is Sony. तो बहुत रिसर्च ने बताया गया है कि मुझे ये क्वार्टर में कितना पैसा बनाना है. अगर आपका ये विजन है तो उसको विजन नहीं बोलते हैं. विजन हैज टू बी लॉन्ग टर्म. ओके, विजन हैज टू बी लॉन्ग टर्म. विजन हैज टू बी समथिंग जो आपको जुनून दे. आप अगर एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो तो ये विजन सबसे जरूरी होता है पहले. दैट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट. और आपको कैसे पता चले कि आपका विजन सही हो? तो उसकी बहुत अच्छी लिटमस टेस्ट है मेरे पास. जब वो विजन आपके दिल से आता है और दुनिया आप पे हंसती है तो दैट्स अ राइट विजन. ओके, वो जब दिल से आता है और दुनिया आपको हंसती है तो राइट विजन है. बिकॉज दुनिया को पता नहीं चलता. दुनिया बोलते क्या पागल बात कर रहा है, ये अभी इतना सा कुछ कर रहा है. ऐसा थोड़ी होता है. तो दुनिया को पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन आपको दिल में पता है. तो वो विजन बहुत जरूरी है. विजन लॉन्ग टर्म भी बहुत जरूरी है. यू कैन नॉट हैव अ शॉर्ट टर्म विजन. क्योंकि क्या होता है, आप जब धंधा करते हो तो एक क्वार्टर में पैसा बनता है, दूसरे क्वार्टर में जाता है, कभी कभी बनता ही नहीं. ये सब होता है. तो अगर आपका विजन सिर्फ पैसे से रिलेटेड हो तो उससे कुछ होगा नहीं. कि मैंने जो ये कंपनी चालू की है वो कैसी दिखनी चाहिए, उससे लोगों का क्या होना चाहिए, मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनका लाइफ कैसे होना चाहिए, ये सब जो विजन देखते हो ना. बिकॉज हमारे जो धीरू भाई अंबानी हैं वो तो एडन में अफ्रीका में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे थे. लेकिन उन्होंने एक दिन तय किया कि मैं शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा. आज आपको रिलायंस अच्छी लगे ना लगे, आप घटसोली में जाओ, रिलायंस का जो बढ़िया कैंपस है, हेडक्वार्टर है, वो देख के आप चौंक कर रह जाओगे. और धीरू भाई अंबानी कौन थे? जो बीकॉम थे 3rd क्लास, एडन के पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रहे थे. बट विजन तो बहुत क्लियर था, मुझे क्या करना है. सो आपका विजन लॉन्ग टर्म. आपका विजन आप किसके लिए काम कर रहे हो. अगर आप एग्री सेक्टर में आपका इनिशिएटिव है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप है, तो ये मेरे विजन से किसानों की लाइफ या किसकी लाइफ कैसे बदलेगी, इसका विजन आपके मन में क्लियर होना चाहिए. कैसे होगा शायद अभी पता नहीं है, बिकॉज उसके लिए बहुत एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं. बट क्या होना चाहिए ये आपके मन में बहुत जरूरी है. क्योंकि जिस दिन आपके बुरे दिन आते हैं ना, लो दिन आते हैं ना, कभी कभी ऐसा होता है
आप, मुझे पता नहीं आपके साथ ये होता है कि नहीं, क्योंकि पिछले 7 साल में मेरे साथ ये बहुत बार हुआ है। मैं बैठ के सोच रहा हूँ यार ये सब मगजमारी क्यों कर रहा हूँ मैं, अच्छा खासा कोई जॉब पकड़ लूं और सैलरी ले लूं और फैमिली का पेट पालूं, ये सब क्यों रहा हूं मैं। सो अनलेस यू हैव अ विजन you will lose hope very fast, and that vision has to come from here. That vision has to be not only for yourself, that vision has to be for a larger audience. कि मैं जो टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ, जो मैं इनिशिएटिव कर रहा हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर में, उससे जिंदगियां कैसे बदलेगी, क्या होगा, और वो सुन के शायद लोग हंसेंगे, और अगर लोग हंस रहे हैं तो आप ये जान लो कि आपका विजन बहुत सही जा रहा है। ओके, बिकॉज दुनिया ने हर एक विजन पे दुनिया ने हंसा है। Everybody has laughed at all the big visions. So let me tell you something. There's a world's largest consulting company. Okay, they rejected a job to a young girl of Indian origin in America because she submitted a project on social media marketing. और ये 2006 की बात है। उस टाइम सिर्फ, अगर आपको याद है, ऑर्कुट करके एक होता था, उतना ही था। तो ये बड़ी कंसल्टिंग कंपनी है जो बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखती है कि दुनिया में अगले 10 ट्रेंड्स कौन से होने वाले हैं, अगले 10 साल कैसे जाने वाले हैं। ये कंपनी ने, दे लाफ्ड एट हर एंड सेड दैट दिस गर्ल इज चाइल्डिश, ऑर्कुट वगैरह सिर्फ टाइम पास के लिए, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कुछ नहीं होता है, एंड दे रिजेक्टेड हर द जॉब। टुडे यू आर इन बिजनेस, कैन एनीबडी टॉक अबाउट अ स्ट्रेटेजी विदाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग? आप कहाँ ना कहाँ पे तो ये हो, आप फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे हो, लिंक्डइन पे हो, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ता है। तो दुनिया हंसेगी इसका मतलब ये नहीं है कि आपका विजन गलत है। दुनिया हंसेगी का मतलब सिर्फ इतना है, दुनिया को अभी पता नहीं पॉसिबिलिटीज क्या होती है। सो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है खुद के लिए। जब भी मैं कुछ बात करता हूँ मेरे विजन के बारे में और लोग मुझ पर हंसते हैं, तो मैं शांति से सोता हूँ घर में। मुझे पता है मेरा विजन बहुत बढ़िया है, क्योंकि अभी लोगों को पता नहीं चला इसमें है क्या। दूसरा चीज है, ये हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए, शॉर्ट टर्म विजन नहीं होना चाहिए। एक बहुत ही बढ़िया, हम लोग रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही बढ़िया किताब लिखी गई थी, उसका नाम था मैन सर्च फॉर मीनिंग। ओके, आप में से जो कोई पढ़ना चाहते हो ये बुक जरूर देख लीजिए, मैन सर्च फॉर मीनिंग। विक्टर फ्रैंकल करके नाम के ऑथर ने लिखी हुई बुक थी। Viktor Frankl was a medical professional and he worked in psychology area. But Viktor Frankl was a Jew and he survived 3 years of concentration camp. जो नाजी लोग चलाते थे ना, जो लोगों को मारने के लिए जो नाजी कैंप चलाते थे, 3 साल वो जिंदा रहे, और उधर जिंदा रहने के बाद उन्होंने ये बुक लिखी, मैन सर्च फॉर मीनिंग। ओके, हमको पता है पिछले 2 साल पैंडेमिक में हम लोग कितने हैरान हो गए थे। मतलब पैंडेमिक ने हम लोगों को इतना परेशान कर दिया था, लेकिन आप जब कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हो तो रोज आपको कोई मारने की कोशिश कर रहा है, और फिर आप जिंदा कैसे रहोगे। उसके ऊपर उन्होंने बढ़िया बुक लिखा। 2 चीजें उन्होंने बताई कि विक्टर फ्रैंकल ऑलवेज विजुअलाइज्ड हिमसेल्फ कि वन डे व्हेन आई एम आउट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन कैंप आई विल बी टेलिंग द वर्ल्ड, I will be taking psychiatry lectures, and he used to visualize that, and he used to make the scrap notes on the psychiatry lecture, and he used to visualize himself. दूसरा उन्होंने एक चीज बताई, जब वर्ल्ड वॉर 1942-43 आ गया तो एक ऐसी कैंप में ऐसी न्यूज आना चालू हुई कि अच्छा ये वॉर भी खत्म होने वाला है। तो बहुत से जो लोग थे उन्होंने ऐसा सोचना चालू किया, अच्छा अभी 6 महीने के बाद क्रिसमस है, ये साल मैं क्रिसमस अपने घर में मनाऊंगा। अभी हुआ क्या? अनफॉर्चुनेटली वॉर खत्म नहीं हुआ और ये लोग क्रिसमस अपने घर जा नहीं पाए। जिस दिन क्रिसमस खत्म हुआ, हट्टे कट्टे लोग सडनली उनकी देयर हेल्थ डिटेरियोरेटेड एंड दे एक्चुअली डाइड। ओके, बिकॉज दे हैड पुट अ शॉर्ट टर्म गोल सेइंग दैट अच्छा ये हुआ तो ही ठीक है, नहीं तो फिर आई लूज ऑल माय होप। सो योर विजन हैज टू बी लॉन्ग टर्म विजन, योर हैज टू बी बिगर देन योरसेल्फ। योर विजन कांट बी ओनली फॉर योरसेल्फ व्हेन यू आर एन एंटरप्रेन्योर। योर विजन शुड बी अबाउट हुज लाइव्स यू आर चेंजिंग, why you are passionate about that, and it has to be long term, multifaceted कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनका क्या होगा, मैं जिनके लिए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बना रहा हूँ उनका क्या होगा। ये जब आपका विजन डेवलप होता है और आपको इधर से जो लगता है कि ये सही है, तो आपके जो बुरे दिन होते हैं उसमें से आप रेजिलियंस रख पाते हो। विदाउट विजन यू विल इजीली गिव अप, क्योंकि पहला मौका आ गया, पहला डेंजर आ गया, आप गिव अप करोगे, आप सस्टेन नहीं करोगे अगर आपको विजन नहीं है तो।
इधर तक ठीक है? किसी को कोई सवाल है? ये बहुत थियोरेटिकल लग रहा है तो भी आप पूछ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल रियल लाइफ के दूंगा। लेकिन बात ऐसी है कि आपको कुछ तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, मेरा एक मानना है, इसलिए ये सब मैं बोल रहा हूँ। कोई सवाल है, कोई शक है, कोई somebody disagrees with what I said, please say it. I'll wait for a minute. Yes, anybody is having any question? Basically regarding vision, I got one query. Because we are starting and we are new, so it will be difficult for us to have just a wider vision at the initial phase. Once we enter into the business and step on, then we can have a better idea, and then we will be able to have a vision. How we can expect to have a... No. So vision and mission are different. Mission is how will you do it. Okay. Vision is what do you want to do. और वो जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या अगर मैं आपको पूछ सकता हूँ, आप अभी क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस क्या है, क्या कर रहे हैं? I am actually one of the mentors. Okay. So typically vision means, for example, if I'm going to get into a vision which is going to really give advantage to farmers in a particular way, in my own way I would define the way one day when my company succeeds, farmers will create more wealth, farmers will have an easy life, whatever it is. In a very very broad sense कि आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। कभी कभी आप प्रॉब्लम प्रोडक्टिविटी का सॉल्व कर रहे हो, कभी कभी आप प्रॉब्लम कॉस्ट का सॉल्व कर रहे हो, कभी कभी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो टाइमिंग का। बहुत जो आप कर रहे हो आपको पता होता है ना। ये होता है कि कैसे करना है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे एक ड्रीम होता है। And that is what the vision I'm talking about. That's a good starting point. So do not worry about if you do not know how am I going to get there. As long as you are going to get there, you know where you want to go broadly as a large vision. That's all I'm saying. Like for example, मैं एक मल्टीनेशनल में काम करने वाले बहुत सीनियर लीडर से कोच कर रहा था, तो उनको मैंने पूछा कि वो बोले स्ट्रैटेजी में थोड़ा स्लो हूँ, मेरा ये होता नहीं है, टाइम पे होता नहीं है वगैरह, बहुत कुछ बोल रहे थे। और वो कश्मीर से विस्थापित थे। तो मैंने उनको बोला था कि एक 12 घंटे में आपका घर का हाँ का ना हो गया, फिर आप ये मल्टीनेशनल में इतने बड़े कैसे हो गए? तो वो सडनली बोले कि नहीं, जिस दिन हम लोगों को निकाला गया था तो मैंने एक ठान ली थी कि मैं जिन्होंने मुझे निकाला मैं उनको दिखा दूंगा कि आप मुझे डिफीट नहीं कर सकते। So that was a vision saying that मैं कुछ बन के दिखाऊंगा। नो कैसे बनूंगा जब मेरे घर का छत नहीं है, मेरे सर पे खाना नहीं है, कैसे बनूंगा पता नहीं था, पर वो विजन बहुत स्ट्रॉन्ग था कि एक दिन मैं सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा कि मुझे अपने घर से भी निकाला तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ। So vision is more about your broad spectrum, long term, how will it benefit others, how will it benefit, what problems it will solve. That is what is vision about. And you are absolutely right. You will keep on discovering it all through your life about how to get there, because once you get into the field, then only you will have some idea. अच्छा ये काम करता है, ये नहीं करता है, and then you will keep changing your paths. So that's about it. The second thing I'm conscious of the time. So second thing I'm talking about is optimism. ऑप्टिमिज्म ये वर्ड भी हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, बहुत, मतलब ऑप्टिमिज्म इतना इस्तेमाल करते हैं कि बी ऑप्टिमिस्टिक, बी पॉजिटिव, लेकिन उसका मतलब क्या है कोई बताता नहीं। मतलब ये ऑप्टिमिज्म होना ये कहीं फैन स्विच करने जैसा नहीं कि आज मैं ऑप्टिमिस्टिक हो जाऊंगा तो बटन दबाया और ऑप्टिमिस्टिक हो गया, ये तो होता नहीं है। तो ऑप्टिमिस्टिक होना का मतलब क्या है? मार्टिन सेलिगमन नाम के एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट है, बिहेवियरल साइंटिस्ट, जो उनको फादर ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी बोला जाता है। उन्होंने एक बढ़िया बात की थी। उन्होंने एक बताया था कि जिस तरह से आप आपके प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर सकते हो, उस तरह आप ऑप्टिमिस्ट हो कि नहीं ये पता चलेगा। और जिंदगी में उन्होंने 3P का फॉर्मूला दिया था, 3P फॉर्मूला, द 3P टेस्ट एज ही कॉल्स इट। ओके, एंड यू कैन डू इट योरसेल्फ। ओके, जब कोई मुश्किल आती है, समटाइम्स वी मेक इट परवेजिव। मतलब कोई तो प्रॉब्लम है, उसका रायता इतना फैलता है कि हमको लगा है जिंदगी में तो अभी कुछ होने वाला नहीं इसके लिए, सब जगह, मतलब ये इट्स अ बिग प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल, typically when pandemic happened, and pandemic was unprecedented, it really destroyed a lot of lives, okay, but when pandemic happened, people generally said that, oh, this is all calamity, pandemic is all bad, everything is gone at that point. So you're like making everything pervasive कि अभी कुछ नहीं होगा, ये सब
ये सब छा गया है. But you ask yourself a question that is there something which actually has worked in the pandemic? Is there something that is actually working in pandemic which is better? Can somebody tell me what was working better in pandemic when we were all sitting at our homes? World was upside down, but कुछ चीजें अच्छी भी हो रही थी. क्या हो रही थी? Medical professionals got फैमिली लाइफ थोड़ा सुधर गया था. बिल्कुल सर, फैमिली लाइफ थोड़ा सुधर गया था. बच्चों के लिए कम हो गया. हाँ, ये एब्सोल्युटली. लोगों ने मुझे तो यहाँ तक बताया कि यार घर का खाना खाने थे, बाहर खा ही नहीं रहे थे, थोड़ी तबीयत भी ठीक हो. मतलब बहुत सी चीजें होती है. सो ये जो कोई भी मुश्किल आती है तो उसको परवेजिव मत बनाइए. दैट टाइम द क्वेश्चन टू आस्क इज ओके व्हाट इज वर्किंग वेल राइट नाउ. ओके, मेरा एक बड़ा ऑर्डर चला गया है. ओ माय गॉड, अभी धंधा कैसे होगा? अभी तो बैठ गया, अभी तो मर गए. ये तो डील होना चाहिए था, अभी ये डील हुआ नहीं, अभी कैसे करेंगे? नहीं, ठीक है. व्हाट इज वर्किंग वेल? Even in a deal that you lost or an order that you did not get, what was the learning? And if you develop the habit to ask this question, you don't lose heart. Okay, अच्छा ये मैंने डील क्यों गवाया? अच्छा वो आदमी बदमाश था करे कि आप बोलोगे तो आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा. ओके, बट मेरी तरफ से क्या अलग मैं कर सकता था, ये सवाल है. दूसरा पी है परमानेंट. ओके, कि सपोज आप नौकरी कर रहे हो और आपके बॉस ने आपको क्रिटिसाइज किया. बॉसेस तो करते ही है, मतलब उसमें कोई मतलब अजीब बात तो है नहीं. बट बॉसेस ने क्रिटिसाइज किया तो आपने अगर बोल दिया कि यार माय बॉस विल नेवर बी हैप्पी, व्हाटएवर आई डू ही विल नेवर बी हैप्पी, और वो क्लाइंट के बारे में, क्लाइंट ने आपको कुछ फीडबैक दे दिया, तो आप अगर ये सोचोगे यार इसके लिए ना कुछ भी करोगे कभी खुश नहीं रहेगा. द मोमेंट दिस परमानेंट थॉट पी परमानेंसी कम्स इन योर माइंड ना, you give up. Whereas if you just try to understand, is there any data which is to the contrary? The very fact that the client is still dealing with you, which means वो कुछ तो appreciate करता होगा, कुछ तो होता होगा. और जब आप ये सोचते हो कि नहीं, ये जिस दिन आप blame external situation पे या दूसरे पे डाल देते हो तो वो परमानेंसी आ जाता है. अच्छा इसमें अभी कुछ होने वाले नहीं, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये तो होता ही नहीं है. और तीसरा पी है कि पर्सनल. जिन्होंने मुझे बिजनेस सिखाया उन्होंने मुझे चिकना घड़ा का कंसेप्ट भी सिखाया. मैं आपको बताने वाला हूँ. चिकना घड़ा क्या होता है? वो आप घड़ा ऐसा उल्टा रखो, उसके ऊपर आप पानी डालो, पानी टिकता नहीं है उसके ऊपर. ओके, मतलब क्या होता है, जब आप एंटरप्रेन्योर होते हो ना, और आप मुझसे एग्री करोगे, दुनिया आपसे बड़ी अनाप शनाप बातें बहुत बार करती है. वो आपके क्लाइंट्स हो, आपके कोई बाकी के स्टेक होल्डर्स हो, कुछ ना कुछ तो सुनाते रहते हैं. अगर आपने ये पर्सनली लेना चालू किया ना तो आपकी उम्मीद टूट जाएगी. ओके, इफ यू से दैट ओके द क्लाइंट हैज नॉट एक्सेप्टेड माय प्रोडक्ट बिकॉज़ माय प्रोडक्ट इज बैड, then you are making it too personal because I don't know how to do things. हो गया, कल्याण हो गया. So you just say that you know what are the things that are working for me, and you may say that okay listen, मुझे इनिशियल फंडिंग का सपोर्ट मिला है. अच्छा ये चीज है, मुझे मेरे साथ 2 लोग और काम कर रहे हैं तो मुझे सपोर्ट है. तो आपको कुछ मिलेगा तो आपके लिए अच्छा हो रहा हो. तो सभी चीजें बुरी नहीं होती. तो आपको अगर ऑप्टिमिज्म आपका रखना है तो ये 3 P's अवॉइड करिए. डोंट मेक एनीथिंग परवेसिव, डोंट मेक एनीथिंग परमानेंट, एंड डोंट मेक एनीथिंग पर्सनल. द वे यू एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम्स tells a lot about whether you are optimistic or not. It's a very simple. इसके लिए कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. अगले टाइम जब आपको मुश्किल आएगी और आप वो मुश्किल के बारे में कैसा एक्सप्लेनेशन देते हो, दैट विल टेल यू whether you are maintaining your optimism or not. फिर भी ऑप्टिमिज्म मेंटेन कैसा करने का, ये तो एक प्रॉब्लम है ही, और उसका भी एक बहुत साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन है. अभी क्या है ना कि आजकल हम लोग बड़े मॉडर्न हो गए हैं, तो जो भी कोई चीजें पुरानी थी या हमारी संस्कार परंपराएं थी, हम लोग सब वो मतलब ओल्ड फैशन लगता है. लेकिन ये जो साइंटिफिक रिसर्च हुआ है बिहेवियरल साइंस में, उन्होंने एक बहुत बढ़िया चीज बोली है कि अगर आपको आपका ऑप्टिमिज्म मेंटेन करना है तो भले ही आपका दिन कैसा ही गुजरा हो, शाम को बिफोर यू एंड योर डे, मे बी इट्स बिफोर डिनर, मे बी बिफोर इट्स योर स्लीप, सिट देयर and
से व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर टुडे। दुनिया के सभी धर्म यही बोलते हैं कि सोने के पहले या खाने के पहले अपनी प्रेयर्स किया करो, थैंक यू बोला करो। फाइनली भगवान क्या चीज होती है? भगवान जो आप मानते हो वो होते हैं। भगवान मतलब आपका लक भी हो सकता है। ओके, एक दिन खत्म करने के पहले शांति से बैठ के आई एम ग्रेटफुल फॉर दीज 3 थिंग्स बोला करो। और इसका एक्सपेरिमेंट बहुत बड़ा हो चुका है और उसके रिजल्ट बहुत। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ये तो आप जरूर करो, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है आजकल। क्या हो रहा है, सोशल मीडिया सब जगह फूट के इंफॉर्मेशन आ रही है, न्यूज चैनल 24 घंटे चालू रहते हैं, और अनफॉर्चुनेटली ना पॉजिटिव न्यूज नहीं होती है। जब कोई निगेटिविटी होती है तो उसकी न्यूज बड़ी बनती है, टीआरपी बड़े बनते हैं। तो आपके बच्चों पे, यंगस्टर्स पे निगेटिव आइटम्स का बम्बार्डमेंट दिन रात हो रहा है, और बच्चे सोचना चालू कर रहे हैं अच्छा ये दुनिया ऐसी ही है, दुनिया बहुत बड़ी बकवास चीज है। अगर उस दिन आपने चालू किया आपके घर में सब, और मैंने खुद किया है इसलिए मैं आपको हक से बोल रहा हूं, जो घर के मेंबर से साथ में बैठ के, या अगर आपका छोटा सा ऑफिस हो, आपके लोग हो, बिफोर यू क्लोज द डे साथ में बैठ के व्हाट आर वी ग्रेटफुल फॉर टुडे, एंड जस्ट बी ऑनेस्ट। इट डज नॉट हैव टू बी बिग थिंग। जिंदगी में बड़ी बड़ी चीजें रोज होती नहीं है। तो हम लोग जब फैमिली में बैठते हैं तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं यार आज ना आई एम ग्रेटफुल फॉर I could talk to my friend, so I'm grateful for that. Or today, you know, ये माँ ने खिचड़ी बनाई है, I like this खिचड़ी, I'm grateful for the food. I'm grateful because I'm wearing a shirt which I wanted to wear. I like छोटी छोटी चीजें, लेकिन honestly. और अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा इससे क्या होगा, इससे बड़े प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होंगे, तो मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अगर आप डिसिप्लिन से विदाउट फेल ये करते रहोगे तो ओवर अ पीरियड, हाउ मेनी ऑफ यू नो machine learning? Has anybody learned about machine learning, artificial intelligence? सीखा है किसने? मतलब मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट ये होता है, आप मशीन को बहुत डेटा फीड करोगे और एल्गोरिथम फीड करोगे तो मशीन अपने आप लर्न करना चालू करता है। ओके, ऑटोमेशन का इसी को ऑटोमेशन बोलते हैं। लेकिन आप जिस दिन खुद के ये जो मशीन है ना, इधर कंप्यूटर जो है, उसको रोज डेटा फीड करना चालू करोगे कि अच्छा इतनी इतनी चीजें रोज अच्छी हो रही है, your optimism actually goes up, and this is scientifically proven fact. This is not some mumbo jumbo. Okay, it has been proved that in fact Martin Seligman ने लोगों के इंटरव्यूज पढ़ के कौन सी टीम टूर्नामेंट जिनकी जीतेगी ये भी प्रेडिक्ट बहुत सही तरह से किया है। कि जिस तरह से आप बात करते हो, जिस तरह आप एक्सप्लेनेशन देते हो, जिस तरह आपका ग्रेटिट्यूड है या नहीं है, it will decide whether you are optimistic or not, and that will have a huge impact on your resilience. दूसरी बहुत सी चीजें ऐसी है जो मेरी इंट्रोडक्शन करते हुए मुझे बताया गया था कि मास्टर सर्टिफाइड कोच हो, और कोचिंग बीचिंग आजकल बड़े बड़े शब्द है, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही सिंपल नुस्खा बताता हूँ जो आप अपने आप कर सकते हो। उसके लिए अगर कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। हम सबको एंजाइटी लगती है बहुत बार, और हमारे इंडियन कल्चर में ऐसा है कि हम लोग फीलिंग्स ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। फीलिंग्स एक्सप्रेस करना दुबलेपन की बात समझी जाती है। इट इज कंसिडर्ड एज अ साइन ऑफ वीकनेस। ओके, इनफैक्ट वी आर ऑलवेज टोल्ड ना, अच्छा बॉयज डोंट क्राई इन पब्लिक, ये वो बहुत बचपन से बताया जाता है। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आप स्ट्रेस में हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज व्हाट इज द स्ट्रेस अबाउट एंड व्हाट डू यू नीड टू डू। आस्क योरसेल्फ 3 सिंपल क्वेश्चन। व्हाट एम आई रियली एंग्शियस अबाउट? किस चीज का मुझे डर लग रहा है? अच्छा, जिस चीज का डर लग रहा है अगर वो चीज हो गई तो बुरा से बुरा क्या होगा? व्हाट इज द वर्स्ट दैट विल हैपन इफ व्हाट आई एम सेइंग हैपेंस? एंड द थर्ड थिंग इज दैट व्हाट वुड आई नॉट लूज इवन इफ दिस हैपेंस? तो 3 सवाल मैं वापस रिपीट करूंगा। जब आपको स्ट्रेस आता है तो पहला सवाल है कि मुझे एग्जैक्टली किस चीज का डर है, किस चीज का डर है मुझे, किसके बारे में मैं इतना डर रहा हूं। दूसरा ये, अच्छा ठीक है वो बुरा से बुरा हो गया तो फिर क्या होगा, बुरा से बुरा क्या हो सकता है अगर वो हो भी गया तो। और तीसरी चीज है कि क्या रहेगा मेरे पास अगर वो होने के बाद। इफ यू कैन आस्क दिस 3 क्वेश्चंस एंड आई विल गिव यू वेरी, बिकॉज बाय द वे दोज ऑफ यू हु डू नॉट नो, I will tell you, Prachi is my classmate from school, so she told me that I have to come and talk here. I'm coming here, so I'm talking some things very personal. So जब पैंडेमिक चालू हुआ तो मैं ये कंसल्टिंग और कोचिंग ये बिजनेस में हूँ।
अभी ऐसा होता है कि जब लोगों के पास पैसे नहीं होने वाले तो वो कंसल्टिंग और कोचिंग में पैसे कहाँ डालेंगे, बराबर है। तो हमारा धंधा तो चौपट होने की बात आ गई थी। तो मार्च में मैं और बीवी बैठे थे एंड हम लोग बड़े बड़े डरे हुए थे एक्चुअली मार्च 2020 में कि अभी हमारा क्या होगा। ओके, तो यही फॉर्मूला, बिकॉज आई एम ट्रेन्ड टू डू दिस बट यू कैन डू इट योरसेल्फ। मैंने खुद को पूछा कि मैं किस चीज से डर रहा हूं, मैं किस चीज से डर रहा हूं। तो दो चीजों का डर सामने आया। एक तो पैसे के बारे में, अच्छा पैसा नहीं मिला तो क्या होगा। दूसरा डर ये था कि 5 साल से बहुत मेहनत करके क्लाइंट्स के सामने एक प्रोफाइल बनाया है, अगर वो सब क्लाइंट का विजिबिलिटी चला गया तो ये पूरा काम चौपट हो जाएगा, फिर वापस सब करना पड़ेगा। तो हमने अच्छा, देन द सेकंड क्वेश्चन, अच्छा चलो ठीक है, आपको काम मिला ही नहीं तो बुरा से बुरा क्या होगा। अच्छा पैसे नहीं मिलेंगे तो बिना पैसे के आप घर चला सकते हो। जब व्हेन यू आर अबाउट 50 एंड वी हैव अ सिंपल मिडिल क्लास, यू नो व्हाट वी कॉल दाल चावल लाइफस्टाइल, आपका घर वर तो चल जाता है। ऐसी भी इतनी बुरी हालत नहीं होती कि घर कैसे चलेगा, उतना भी नहीं। अगर एक साल पैसा नहीं कमाओगे तो भगवान की दया से चलो। मैं बोला तो अभी दूसरा डर किस चीज का है, हमारे क्लाइंट्स चले जाएंगे। अच्छा तो हम लोग इसके बारे में क्या कर सकते हैं। देन वी सेड कि ठीक है, ये हो सकता है कि पैसा नहीं लेकिन क्लाइंट होने चाहिए। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, विदाउट एनी स्ट्रेटेजी, इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि रेजिलियंस है हार्ट की बात है, ये दिमाग की बात नहीं है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमारे सब क्लाइंट्स को, मुझे अभी भी याद है 23 मार्च 23 मार्च को मेल्स लिख दी। 24 मार्च को अगर आपको याद है तो लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था इवनिंग को। 23 मार्च को हम लोगों ने हमारे सब क्लाइंट्स को मेल लिख दिए कि वी सीम टू बी गेटिंग इनटू डिफिकल्ट फेज एंड यू नो पीपल विल नीड लॉट ऑफ पॉजिटिव सपोर्ट. So if you really want help from us, please reach out to us. We are completing 5 years because of you people's support. So for us, April and May are gratitude months. We are not going to raise any invoice if we provide any service to you. Okay? ना मेरे बहुत से दोस्तों ने बोला पागल है क्या, एक बार यू नो फ्री देने की आदत लगाएगा तो बाद में लोग पैसा नहीं देंगे। ऐसा थोड़ी होता है। अगर किसी ने मेरी दिल से मदद की तो मैं उसका फायदा नहीं उठाता हूँ, मैं भी उसकी मदद करता हूँ बाद में। तो मुझे ये सही लग रहा है, मैं ये करूंगा। तो हम लोगों ने ये मेल भेज दी। मैं आपको उसके बाद क्या हुआ, और ये कोई स्ट्रैटेजी नहीं थी क्योंकि क्या होगा हमें पता नहीं था। सब क्लाइंट्स ने इतना बढ़िया रिस्पांस दे दिया कि मैंने और मेरी बीवी ने, हम लोग दोनों मिलकर एक कंपनी चलाते हैं, हम लोगों ने 30 वेबिनार किए, 30 2 महीने में। तो हर अल्टरनेट डे हम लोग वेबिनार कर रहे थे। हम लोग पैसा नहीं बना रहे थे बाय द वे, बिकॉज हम लोगों ने लोगों को बोला था हम लोग इनवॉइस नहीं भेजेंगे, बट हम लोग हमारे क्लाइंट्स के सामने थे। दूसरी चीज ये हुई कि ये जो अभी चालू है ना, हम लोग ये वर्चुअल वेबिनार कर रहे थे, किसी को आदत नहीं थी 2 साल के पहले। ओके, तो हमारी प्रैक्टिस हो गई उसमें। और एट द एंड ऑफ द 2 months क्लाइंट से, अरे ये तो ठीक चल रहा है तो काम चालू करते हैं, क्या बात है। तो हमको जो लग रहा था कि सितंबर अक्टूबर तक हमारा काम ही चालू नहीं हुआ, हमारा तो मई में काम चालू हो गया। तो इवन द पैंडेमिक इयर्स विद द गॉड्स ग्रेस, टच वुड, वी एक्चुअली हैड अ गुड ईयर. And all this because first we accepted what are we scared of. And if I remember that day on 22nd March or 23rd March morning, me and my wife were extremely scared. हम लोग डर चुके थे, बहुत डरे हुए थे, क्या करना है पता नहीं चलता। और ऐसे मौके, आप जब एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस में हो, तो ये ऐसे मौके बहुत आते हैं। ऐसे टाइम आपको सिर्फ खुद को ये 3 सवाल पूछने, ये मैजिक सवाल है, मुझे किस चीज का डर है एग्जैक्टली। और बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ व्हेन यू आर आंसरिंग दैट क्वेश्चन। डोंट ट्राई टू बी अ हीरो, बी ऑनेस्ट। मुझे अच्छा इस चीज का डर लग रहा है, मुझे पैसे का डर लग रहा है, मुझे इसका डर लग रहा है, जो भी है। अच्छा बुरा से बुरा क्या होगा अगर वो हुआ तो, एंड व्हाट इज इट दैट आई विल स्टिल हैव व्हेन दैट हैपेंस। if you catch that bull by the horn, no, you will come out of it because you will get some action, you will get some hope to do. Like हम लोगों को ये एक्शन याद में आया, चलो क्लाइंट को मेल लिखते हैं, अगर वेबिनार करते सबको पैसा नहीं बनाया तो कम से कम क्लाइंट के सामने तो खड़ा रहेंगे। ये चीजें होती है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो प्राची विल आस्क मी टू शट अप एनी टाइम, सो बिफोर दैट आई विल जस्ट से दिस। द लास्ट वर्ड विच इज नॉट अ वेरी गुड वर्ड, हम लोगों ने इसको विलन बना दिया है, इज द वर्ड कॉल्ड डिसिप्लिन. You have to have a discipline if you are an entrepreneur. And I'll tell you what discipline I'm talking about. You have to have a discipline of your health. You have to have a discipline of your life. You have to have a discipline of your social life. Okay? मैंने एक चीज देखी है, हम लोग अपने दोस्तों से बात करना बंद कर देते हैं, हम लोग फैमिली के लिए टाइम नहीं देते हैं, हम लोग एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं,
ओके, बिकॉज अभी हम लोग एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, बहुत बिजी है जितना, और मैं जानता हूँ कि कभी कभी आप ये सोचते होंगे यार दिन में अगर 26 घंटे हो गए तो अच्छा हो जाता, लेकिन दिन में 24 ही घंटे रहेंगे किसी के लिए भी. तो इफ यू डू नॉट हैव अ डिसिप्लिन्ड रेजिम, इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर, if you don't take care of your timings, if you don't take care of your emotional social life, you will never, you will find it very difficult to build resilience. आपने ये बर्नआउट की स्टोरी सुनी होगी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट बॉसेस अचानक एक दिन फिट थे लेकिन अचानक एक दिन गुजर गए, ये बहुत स्टोरी होती है. एक तो उसमें नसीब का भाग होता है, उसमें कोई बोल नहीं सकता, somebody, it can be a luck. But it is also sometimes a pressure that we take. We really build ourselves like a pressure cooker. Please understand one thing. You pressure cooker को भी वॉल्व होता है ना, वो स्टीम छोड़ देता है. वैसा आपका वॉल्व क्या होता है? आपका वॉल्व होता है आपकी फैमिली, आपका वॉल्व होता है आपके कॉलेज के फ्रेंड्स, और आपके जो करीबी दोस्त रहते हैं ना, उनको कुछ पड़ी नहीं है आपने क्या किया नहीं किया. ओके, मतलब आप उनके लिए दोस्त हो. अगर आप सक्सेसफुल हो, आप सक्सेसफुल ना हो, आपने क्या कमाया क्या नहीं कमाया, कॉलेज दोस्त रहते हैं, स्कूल कॉलेज के जो दोस्त रहते, उनको कभी मत छोड़िए. आपकी फैमिली को कभी मत छोड़िए. थोड़ा टाइम निकालिए. और ये बहुत अजीब लग रहा होगा आपको, ये क्या ज्ञान दे रहा है, लेकिन ये सब साइंटिफिकली प्रूवन चीजें हैं. जब आप एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हो, ये हो सकता है कि आप पूरी की पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा रहे हो, लेकिन क्या आप आपका डाइट फॉलो कर रहे हो, क्या आप आपका एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो, क्या आप आपके फैमिली को टाइम दे रहे हो, क्या आप आपके दोस्तों को कॉल कर रहे हो. ठीक है, हफ्ते में एक बार कीजिए, लेकिन कम से कम फोन उठा के 10 मिनट 15 मिनट तो उन लोगों से बात कीजिए जिनसे आपके कोई धंधे से लेना देना है नहीं. ओके, अगर ये डिसिप्लिन आप फॉलो नहीं करोगे तो आप आपका बिजनेस चलाने के बजाय आपका बिजनेस आपको चलाएगा. एंड दिस हैपेंस विद मेनी पीपल. So discipline is not a bad word. To have the schedules, to stick to the schedules is not a bad word. And if you really follow that, please do that. So I'm going to summarize. There are 3 minutes remaining to an hour when we started. And I'm going to open it for questions. Resilience, what comes in the way of resilience is 3 things. One is I have to be the smartest, that pressure that I have to be the smartest, I have to be the strongest, and I have to win all battles. These are the things that come in the way of building resilience. Resilience के 4 building blocks क्या है? एक तो आपका vision होना चाहिए. Your vision has to be bigger than yourself. Your vision has to excite you first, and it has to be long term. Vision is not what is the money that I'm making next quarter. That is not called vision. Okay, it has to be long term, multidimensional. It is to clearly spell out whom will it impact. दूसरी चीज है optimism. ऑप्टिमिज्म के बारे में मैंने आपको 3 P's बोले थे. कभी भी मुश्किल आया तो आप देख लो आप खुद को कैसे एक्सप्लेन कर रहे हो. आर यू मेकिंग इट परवेसिव, आर यू मेकिंग इट परमानेंट, आर यू मेकिंग इट पर्सनल. एंड आस्क योरसेल्फ काउंटर क्वेश्चंस. व्हाट इज वर्किंग वेल, व्हाट इज वर्किंग वेल फॉर इन दिस सिचुएशन आल्सो. लुक फॉर डेटा. डेटा ऑलवेज हेल्प्स यू टू रिड्यूस द फीलिंग्स. फीलिंग्स कांट रिड्यूस फीलिंग्स, डेटा कैन रिड्यूस द फीलिंग्स. The third thing is vulnerability, which I talked about. जब स्ट्रेस आता है तो एक्सेप्ट करो स्ट्रेस आ रहा है और ये 3 सवाल पूछो. What am I stressed about? What is the worst that will happen that I'm scared of? And what will I still have even if the worst happens? You know, if you ask these 3 questions, you will see the magic how it releases your stress and you start thinking positive. And fourth but not the least is the discipline. How do you really maintain discipline? And discipline का मतलब ये होता है कि how do I really take care of my health, my wealth, my family, my social life, my friends. Life is not unidimensional, and you are running your business. Your business should not run you. Always remember that. And I know it's a very abstract topic, but I just tried to talk to you based on what is my personal experience, whatever I've seen working with some big leaders whom I had a luck to work with along with close side based on some research that I could gather. Saturday afternoon, you gave me 1 hour of your life precious. I have absolute gratitude for that, and I hope even if a little bit thing it makes sense, I'll be very happy. We may be running out of time, but if there are any questions, I'm very happy to ask the questions. The institute has my numbers. Please feel free to take my number from them and you can WhatsApp me all your questions. I will always be very happy to answer. Okay, absolutely no problem. That's what I'm right now unemployed, so I have a lot of time to answer a lot of questions. So don't worry about my time. Yeah, it was always a pleasure to answer questions when people ask. So I'll stop here.
Thank you so much for your patience, and I'll just open up now and say any questions. और कुछ भी सवाल पूछिए पर्सनल सेशन के बारे में, कोई दिक्कत नहीं. Yes. Sir, I had a question about the long-term vision. तो इसमें, hello, can you hear me? Yeah, loud and clear. Yeah. So about the long-term vision. So in this, I wanted to know. Of course, we are facing these things already. Like you can have long-term vision, but then इसमें limits कैसे रखने हैं कि भाई ये vision कब तक implement होना चाहिए. So then we have to shorten the vision. We have to break up the vision in iterations. ये सब करना पड़ता है. But then how to keep those limits for the long term vision कि भाई ये साल तक तो होना ही है ये implement, if you have that kind of idea. So do not confuse between vision and goals. Okay, vision is a starting point for goals. So I'll give you again a very personal example. Okay, and that will perhaps help you understand. मुझे बचपन से डॉक्टर बनना था. अगर किसी ने भी मुझे पूछा कि क्या चाहिए, क्या बनना है, डॉक्टर बनना है. और वो बचपन में ना पैसा पावर कुछ समझता नहीं है. बचपन में डॉक्टर इज सीन एज अ वेरी नोबल प्रोफेशन कि आई शुड बी एबल टू हेल्प पीपल, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना था. तो हम लोग ऐसे स्कूल में पढ़े थे कि यहाँ 2 ही प्रोफेशन हुआ करते थे, इंजीनियरिंग या मेडिकल. ओके, अगर आपने बीएससी किया तो मतलब आप आइदर फेलियर इंजीनियर हो या फेलियर डॉक्टर हो. तो मेरे बारे में मैं फेलियर डॉक्टर हूँ बिकॉज मैं बीएससी में चला गया. ओके, ना डॉक्टर तो नहीं बन पाया. फिर क्या करना है? वो विजन तो है कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है. तो मैंने पिताजी को मुझे आईएएस की तैयारी करनी है. नो, व्हेन यू आर इन दैट एज, नो 18 19, मनी और पावर डज नॉट एंटाइज यू. यू लुक एट दैट थिंग एज समथिंग व्हिच will really help people. You can do good to people and all those things. फिर आईएएस के बजाय मैंने एमबीए किया, लेकिन वो भी एचआर में किया कि मुझे हमेशा लगता था अगर मैं एचआर में करूंगा तो मैं लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा. Finally today, okay, I am a coach. And I'll tell you what I get paid for. So a lot of senior corporate leaders, CEOs, and a lot of these people interact with me to solve their problems. And my job is to help them solve their problems. So मैं डॉक्टर तो नहीं बना, और शायद ऑब्वियसली बनूंगा भी नहीं. बट मेरा एक विजन था कि मुझे लोगों को हेल्प करना है. I want to be that person who can really do something for people. So इस तरह से नहीं तो उस तरह से नहीं तो कहाँ से तो मैं वहां पहुंच ही जाऊंगा. Becoming a doctor was just one of those paths to that vision. Okay, and as a child I knew only that. I did not know about all the other streams. So as you go along, जैसे सुंदर मूर्ति सर ने बोला ना कि as you go along, a new data keeps coming. When the new data keeps coming, you will find alternate routes to your vision, and that will change. But the overarching vision as to what is called your purpose never changes. Correct? And that is अगर ये नहीं चला तो मैं दूसरी तरह से वो करवाऊंगा, लेकिन करूंगा तो सही. ये लेकिन विजन आप गोल्स में कन्वर्ट करते हो. ये साल में क्या करना चाहिए, वो तो चलता रहेगा. अच्छा, ये स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही, इस तरह से नहीं हो रहा है, तो अभी दूसरा क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी बदलो, विजन नहीं बदलो. Okay. And one small thing related to the same question, when we are having this long-term vision, क्या होता है? If it is something related to us, जो हमको करना है, that we will do. But when it is something to be done by other people, they have to contribute or they have to accept and help you to go ahead. वो नहीं होता है. So then, of course, I think we have to find other ways to get it done. But these are. No, so your very right question. So one of the most important part is that how do you onboard other people on your vision? Correct. That's the question that you are asking. अगर वापस बताऊंगा, अगर जो कोई पढ़ना चाहते हैं तो एक बहुत ब्रिलियंट बुक है कॉल्ड हार्ट ऑफ चेंज. जॉन कॉटर नाम के हार्वर्ड के प्रोफेसर ने लिखी है. उसमें बहुत सी रियल लाइफ स्टोरीज है, लेकिन मैं आपको जिस्ट बताता हूँ. ऐसा होता है कि मैं आपको बड़ा आसान सा एग्जांपल देता हूँ. हमारे जो बड़े बड़े नेता थे, लीडर्स थे, उन्होंने ये विजन देखा था कि द कंट्री शुड बी अ फ्री कंट्री फ्रॉम द कॉलोनियल रूल. करेक्ट? Yeah. Now just imagine that became a people movement. Okay, मैं आपको 2 चीजें बताता हूँ. पूना से बड़ी मूवमेंट चालू हुई थी. ऐसे कुछ लीडर्स थे, उन्होंने ऐसे कुछ एक्ट पास किए थे गवर्नमेंट के थ्रू जिसमें लोगों के पर्सनल लाइफ पे, डे टू डे लाइफ पे इफेक्ट हुआ था. लेकिन आज वो एक्ट क्या थे वो भी लोगों को याद नहीं, वो लीडर का भी नाम याद नहीं है. ओके,
मटेरियली अच्छे थे, फिर भी फ्रीडम, सबको फ्रीडम क्या होता है? मतलब ये सवाल मैं जब लोगों को पूछता हूँ, मुझे लोग हेट करते हैं कि अच्छा भाई 16 अगस्त 1947 को आम आदमी के जीवन में क्या फर्क पड़ा डेली लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम फ्री सिटीजन ऑफ कंट्री? करेक्ट, एक्चुअली कुछ नहीं फर्क। बहुत 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 हाल भी हुआ इसके बाद, बिकॉज देश एक ट्रांजिशन से गुजर रहा था, बराबर है। जो हमारे नेता थे, उन्होंने उनको अपना विजन उनके मन में डाल दिया था। अभी मुझे आप बताओ, कल मैं आपको आके बताऊं, आप जाके ना थोड़ा, अभिजीत जी आप जाके वो पुलिस का उधर एक मोर्चा निकालेंगे, वो पुलिस उधर लाठी चार्ज करने वाले, आप जाके प्लीज 2-4 लाठी खा के आ जाइए। आप मुझे पागल हो, मैं नहीं जा रहा हूँ, बट एग्जैक्टली ये लोगों ने किया। फीलिंग, so if you want to really people work with you, make it a point what is it in it for them, क्या फील, एंड ये जो फीलिंग आप लोगों के मन में जब पैदा कर सकते हो तो आप अचीव कर सकते हो। बिकॉज देखो, गांधी जी के पास तो पैसा नहीं था 1 रुपया भी देने के लिए लोगों को सैलरी, तो ये जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सैलरी पेरोल पे नहीं थे, फिर भी जाके लड़ रहे थे। वो बेचारे आपके और मेरे जैसे सामान्य लोग थे जो हाथ में तलवार भी नहीं पकड़ सकते थे, फिर भी जाके रास्ते पे आंदोलन कर रहे थे। क्यों? बिकॉज उनको लगा था आई शुड बी अ सिटीजन ऑफ द फ्री कंट्री, दैट वाज द विजन, राइट? दे वर नॉट फाइटिंग फॉर द जॉब्स, दे वर नॉट फाइटिंग फॉर बिजनेस, दे वर नॉट फाइटिंग फॉर एनीथिंग, दे आर फाइटिंग फॉर अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग और विजन कॉल्ड फ्रीडम। And if your vision is clear in your head and what it means to you and other people, if you're able to explain that and people get excited from within, then they come with you. Otherwise, why would people work for you? मैं ये सवाल बहुत एंटरप्रेन्योर को पूछता हूँ कि why should people work with you? And मुझे बड़े बड़े पैशनेटली सवाल देते हैं कि मेरा सोल्यूशन कितना है, मेरा प्रोडक्ट कितना अच्छा है। 10 मिनट सुनने के बाद मैं उनको पूछता, लेकिन हाँ ठीक है, इसमें लोगों का क्या फायदा है जो आपके साथ काम करेंगे? उन्होंने क्यों काम करना चाहिए आपके साथ? ये तो आपका ड्रीम है, आपके ड्रीम के लिए लोग क्यों मेहनत करेंगे? So if your, that's why your vision can't be only for yourself. If your vision is broader and everybody gets something out of it, then they will work for it. If you tomorrow I want to build the biggest company which is most profitable, people are not going to work for you. Because why would it's log to make you profitable, right? Okay, sir. Okay, got it. Thank you very much. Yes, any more questions? Any more questions? Something that you did not agree, did not like? कोई बात नहीं. Sir, I would like to just share my experience with you as far as asking questions to other people. I'm not a chemist actually. I'm a scientist in natural dyes and textiles. And so when I had a doubt about these, what to do and how to go about, because each plant has one pigment and which is different from the other. And so I had a lot of difficulty in actually knowing these things and how to actually use, what to use and all. So when I started asking these people, chemistry people, and they all wanted, there was no solution with them. And only thing is they wanted to grab what we are doing and all. And I was surprised to see this even in the National Institute of Chemical Technology there also. And we felt that, they're not finding any, so they are not giving any advice or any solution to that. But instead, they will try to take our, what we have done so far so that they can take it forward like that, I had the experience. And so, we would have done much more if I had somebody with me with the chemistry. I feel still that. And also, I think your lecture is very good and we really enjoyed this one. And I hope I agree with most of the things that you talk about. And so in each and anything that happens, we have to take the one which is positive. So then only we can go forward. And so we should have a larger vision and think big and like what our earlier president said, think big and try to achieve that. मैडम आप जो बोल रहे थे ना, आपका कन्विक्शन सामने आ रहा था, ये तो होना ही चाहिए। अगर उनको नहीं आता है तो किसी को तो पता होना ही चाहिए. Okay. Yeah, yes, definitely. But we could not get somebody who is really good. You will get somebody because ऐसी बात है ना कि सोचने वाली बात है. सिर्फ 120 साल पहले, ज्यादा नहीं, 120 साल पहले अगर किसी ने बोला होता, 120 साल कुछ बड़े नहीं होते हिस्ट्री में, 120 साल पहले अगर किसी ने बोला होता कि आदमी ने उड़ना चाहिए तो उसको पूरा मेंटल असाइलम में डाल के रखते थे, बराबर है. आज हम लोग फ्लाइंग के बिना जी नहीं सकते, ये बात सच है. तो आपको जो अभी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है,
ये आपका अगर ये हाइपोथेसिस है कि ये वर्क होना चाहिए तो होगा. यू विल गेट राइट पीपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. आप लोग को सब टाइप के लोग मिल जाते हैं. कुछ लोग आपका एडवांटेज लेना चाहेंगे, कुछ लोग आपके आइडिया चुराना चाहेंगे. सो यू हैव टू बी कॉन्शियस विद दैट, बट don't give up that thought, because that thought will one day have a solution which nobody can beat actually. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. One thing I wanted to just ask you, because the center stage of your presentation lies on the vision that the person has. So is there anything called as this is the right vision, this is the wrong vision? So how we differentiate between that? Fantastic. I was just waiting for somebody to answer. Thank you so much, sir. ये बड़ा सवाल है कि ये विजन सही है गलत है, कैसे पहचानेंगे. मतलब अगर गलत विजन के पीछे दौड़ेंगे तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी. तो विजन सही है या गलत है ये कैसे पहचानेंगे. और ये सवाल बड़े बड़े उनको सता चुका है. ओके, तो द ओनली क्राइटेरिया which has been proven time and again is, I'll just give an example right now. जब साधना मैडम बात कर रही थी, so she was very clear. ये होना चाहिए, कैसे होना चाहिए पता नहीं, लेकिन होना तो पक्का चाहिए. कोई ना कोई तो मिलेगा एक दिन, कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन होगा तो जब अजीब से अलग से कुछ हो जाएगा. ये जो आपका जो एक scientifically it has been proven that our mind has an infinite capacity to process data. Okay, जो आप बचपन से देखते आ रहे हो, आपका माइंड, आपका ब्रेन प्रोसेस करता आता है. And that's why I said there are two rules to understand whether you are running behind the right vision or wrong vision, in my opinion. And there's a lot of data to prove these two rules. First rule is it has to come from your within. It has to come from your heart. आपको दिल से लगना चाहिए, तो होना चाहिए. इसकी जरूरत है, ये हो सकता है, कैसे होगा मुझे पता नहीं, लेकिन ये होना चाहिए. दूसरी चीज थोड़ी अजीब लगेगी लेकिन सही है कि लोग हंसेंगे आपके ऊपर. ये दो चीजें जब कॉम्बिनेशन में होती है ना, यू कैन बी श्योर दैट यू हैव राइट विजन. आई विल गिव एन एग्जांपल. राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन ढूंढा, ये हम सबको पता है. दे इन्वेंटेड द एरोप्लेन, करेक्ट? राइट ब्रदर्स इन द यूएस. डज एनीबॉडी नो राइट ब्रदर्स का प्रोफेशन क्या था? पता है किसी को? हु वर दे प्रोफेशनली? You're making cycles, I think. Perfect. They were cycle mechanics. And the highest qualified member of the team was a high school person. Okay. And they were not the only ones who were making aeroplanes. Okay. There was Dr. Langley, whom US government had funded with $50,000, and he was the best scientist. मतलब एडिसन वगैरह सब लोगों ने सीनेट में जाके टेस्टिमोनी दिया था कि he is the best scientist, give him the money. And आप सब लोग भगवान का शुक्र करो कि लैंगले साहब का एक्सपेरिमेंट गलत साबित हुआ, क्योंकि लैंगले साहब ने क्या किया था, लैंगलेस लॉ फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे. ओके, तो उन्होंने बोला कि वो ऐसा, जब हम लोग जैसे तीर से कमान से तीर छोड़ते हैं, वैसे ही एरोप्लेन हवा में जाना चाहिए कि उसको ऐसा प्रोपेल करेगा और हवा में जाके इंजन चालू करना काम करेगा. तो ऐसा हुआ नहीं, 2 प्लेन पानी में गिर गए. तो उसके बाद गवर्नमेंट ने वो एक्सपेरिमेंट बंद कर दिया. तो ये जो साइकिल मैकेनिक थे राइट ब्रदर्स, उनका विजन ये था कि यार आदमी ने उड़ना चाहिए. अगर आदमी उड़ पाएगा तो पूरी ह्यूमैनिटी की जिंदगी बदलेगी, हमारी तो भी बहुत बदलेगी. एंड उन्होंने फिजिक्स का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व किया. दे वर वर्किंग ऑन द विजन दैट मैन शुड फ्लाई, बिकॉज दे हैड नो फिजिक्स नॉलेज एक्चुअली. दे वर नॉट साइंटिस्ट एट ऑल, दे वर साइकिल मैकेनिक्स. ओके, एंड व्हेन दे परस्यूड दैट, नोबडी बिलीव्ड. Only after 2 years of effort of continuously finally showing that their plane was in the air for 25 minutes, that was the first time in 1905 somebody accepted कि अच्छा ठीक है, ये हो सकता है. अगर दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट भी फेल हुए तो साइकिल मैकेनिक ने करके दिखाया कि एरोप्लेन कैसे चलता है. The point I am coming to is that only you would know whether you strongly feel about that vision or not. And if you are very honest, then you will never go wrong, because then you run behind it completely. Okay, जब मैंने कोई बड़ा सक्सेस वगैरह तो किया नहीं, लेकिन जब मैंने खुद का धंधा चालू किया था, मुझे पता नहीं था मेरा पहला क्लाइंट कहाँ से आने वाला है, बट मुझे ये करना था. और अगर आज मैं आपकी खुद की, और मैंने अवॉइड किया है कोई प्रेजेंटेशन दिखाने, अगर मैं खुद की स्लाइड आपको दिखाऊंगा तो वो स्लाइड पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वोडाफोन है, जॉन डीरे, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी उस साइड पे जो हमारे क्लाइंट्स है. कैसे वो मुझे मैं भी नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन वो पक्का था क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए.
एंड उसके पीछे दौड़ने का एक जुनून चाहिए। जुनून जब रहेगा जब वो दिल से आता है। ये साइंटिफिक रिसर्च और डिडक्शन करके अच्छा दिस सीम्स टू बी एन अपॉर्चुनिटी इज ओके, गुड फिजिबिलिटी स्टडी, बट दैट इज नॉट विजन। विजन इज समथिंग व्हाट दिल से व्हाट डू यू वांट टू चेंज, व्हाई डू यू वांट टू चेंज, व्हाई डू यू वांट टू रन बिहाइंड इट। बिकॉज बहुत मुश्किलें आती है, बहुत लोग पागल कहते हैं, बट you will be only able to stick to your own vision only if it is this thing. So the right vision is the one which comes from within honestly, and the one which people laughed at. I have always used these two litmus tests to check out whether my vision is right or not. Anybody else? Sir, one more question. How exactly to decide whom to share your vision and whom not to share your vision, you know? Because you might already instinctively feel ki, you know, this person maybe is not reliable or will not accept. So, because the more persons you get working on your vision, the easier it's going to be. तो ये कैसे decide करना है यानी? Which person to talk to? What a wonderful question. Fantastic. Now I'll tell you what I do and what I have believed in doing. You don't have to agree. I share it with everybody. दो चीजों के लिए मैं इसमें ये असेसमेंट में मेरा टाइम, बिकॉज माई विजन तो कोई स्टील नहीं कर सकता. ओके, इट्स माई विजन, आई नो व्हाई दैट विजन, ओनली आई नो डीप डाउन. मेरा स्ट्रेटेजी, मेरा प्रोडक्ट, मेरा टैक्टिक कोई चुरा सकता है, मेरा विजन कोई चुरा नहीं सकता. बिकॉज दे वुडंट, बिकॉज इट इज नॉट देयर विजन, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. ओके, दे कांट रन विद इट. फर्स्ट. सेकंड थिंग इज, अगर किसी ने मुझे मेरा आइडिया चुरा लिया, तो मुझे एक पक्का पता है कि किसके साथ काम नहीं करना है. Okay, and it has happened with me, by the way. It's not that people have not cheated me. That is a very common issue. But I'll tell you the good news. Let me ask you a very blunt question. If I come with you with a trust and share my idea with you, will you steal it? No. Okay. So 98% of the people, and my experience of last 30 years is that 98% of the people are like you and me. They will not break somebody's trust. And you can't have a strategy for 2% of nutcases anyway, actually. उनको अगर चोरी करना है तो वैसे कैसे भी चोरी करेंगे. So do not waste your energy in assessing people, ये वो, because चोरी करके भी औकात होनी चाहिए ना उस पर कुछ काम करने की. मतलब चोरी करके भी कुछ होता नहीं है. अगर मेरी आइडिया है तो वो लेके आइडिया कुछ कर नहीं सकता. अगर उनका जुनून नहीं है उसके बारे में, उनका अगर वो विजन नहीं है, तो वैसे भी कुछ कर नहीं पाएंगे. And somebody, the moment somebody cheats you, I have always have a ready reckoner saying that इसकी जिंदगी में कुछ भी हो, इनसे डील नहीं करना है. Yeah, people don't change. But no, I mean, whether they change or not is not my problem, because I go only by data. If somebody has cheated with me, I will not go with that person again ever. But by and large, I trust everybody whom I meet. Let them break my trust, then I will know whom not to trust. But I am not going to waste my energy in assessing, judging people. Okay. I have got immensely benefited by that life. I have always remained happy, light-hearted. People have generally helped. एक दो चोर निकले, उन्होंने मेरे ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाया. That's okay. Correct. Okay. Yeah. Thank you. You know, sir, अभिजीत जी, यही वाला जो हम लोग बात करें ना, you don't have to win all the battles, right? Sorry? You don't have to win all the battles. You don't have to get it right all the time. Correct. Some people you will go wrong with. That's okay. Let it be. Correct. Yeah. Sir, if people have this attitude of, sharing with other people every time, and so that will be very nice, because sometimes what happens is that, people will not, especially in the educational institutions and other institutions, people do not bother about. Can you hear me? No, yeah. What people should do, we have no control over. We have control over what we need to do. So for me personally, I will do this way. Whether others are doing it or not is not my problem, actually, because I feel very happy when I share. I feel very happy when I share things. I feel very happy when I don't keep secret. आप सभी लोग लैपटॉप इस्तेमाल करते हो, बराबर है? और लैपटॉप में एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, रैम. पता है आपको? आपके फोन पे भी होता है.
अगर उस पर बहुत डेटा आ गया तो क्या होता है पता है आपको? वो रैम, आपका जो कंप्यूटर का रैम, वो स्लो हैंग हो जाता है. so keeping secret in your mind is like loading your RAM with the data, unnecessary data. It slows your mental agility. So I generally don't bother with keeping secrets, and the people who know me know this. I will share whatever I know. है तो ले लो, नहीं है तो कुछ कर पाओ तो करो. In fact, I am in the business of this intervention, so I do a lot of design work. I design a lot of workshops and stuff like that. I give my presentations, I give my designs to my clients also. अगर आप खुद अंदर कर सकते तो करो, जियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. That is the confidence that you have, sir, and I think everybody should have that confidence. Yeah, if somebody comes out with something, we can do better than that, definitely. Absolutely. So I keep sharing. I don't waste my energy in assessing people, doubting people. You know, ये चोर है या सज्जन है, मैं उसमें जाता ही नहीं हूँ. By default, my default assessment is that anybody who's coming in front of me is a good person, and I trust. Now that person has to break my trust for me to go other way, and that is very simple. I don't waste any time in assessing. हम लोग ना बड़ा time assessment में जाया करते हैं. लोगों पे ट्रस्ट करो, उनको एक बार ब्रेक कर दे तो अच्छी बात है. उसकी जिंदगी में उनसे डील करने की भी जरूरत नहीं है एक्चुअली. So don't waste. That's a good attitude, sir. Don't waste your energies in judging people. I know I'm talking something which sounds counterintuitive, but you try it out and you will immensely benefit. Because what happens is that when you trust people, people feel very nice about it. When somebody comes and trusts you, you feel very nice about that person, and your network really starts growing fast and this thing. So don't make life difficult. Thank you, sir. Thank you. Yes, Venkesh, do you have any questions? I see nice Captain America behind Amit Patil, and I'm a Captain America. No, sir, no questions right now, sir. Oh, is my kid looking at you? So he's very curious whether you are some work or you are watching something. Patil, you are in space? Sorry? You are where you are? You are in some other place. Yeah, I am in terrace of my house. Okay. Okay. Any other questions, or should we wrap it up? I mean, I know it's a weekend. Thank you so much for all your time. And this is my last question because I am waiting for the last one. Sir, what you taught today, what we listened to today, but practically many a times I tried. Hello? Yeah, I'm able to hear you, sir. Practically many a times I tried. I also read psychology, all these things. Very practically I tried all these things, what you told today. But I found, sir, only 2 to 3 days I continue. Just for example, don't tease people, don't follow people. किसको ज्यादा बताने का जरूरत नहीं, तुम क्या करने का करो. किंतु ये ह्यूमन नेचर ऐसे हो जाता है, आफ्टर 3 days हम लोग फिर लग जाते हैं उसका पीछे, दूसरा को रीड करने के पड़ जाते हैं और खुद का क्या करते हैं हमें मालूम नहीं होता है. ओके, तो इसीलिए मेरे को लगता है आपका जो लेक्चर टुडे जो लेक्चर है ना, it requires more practice rather than listening. More practice is required your lecture. आप जो बताया हमको आज, हमको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसका ऊपर. No, sir, you're absolutely right. You said it right because इसका consciously practice करना पड़ता है. And अगर consciously practice करेंगे, so they say that any habit formation takes 21 days minimum. So if you practice at least for 21 days something which you decide, then it becomes a habit. Otherwise, we again go back to our old habits in 3 days, as you very rightly said. So what if you have agreed to whatever we have talked about today, you need to consciously practice initially. Initially, you will also find it very difficult, but don't give up. I will give you a very simple exercise, sir. आप सब लोग हाथ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जरा हाथ ऐसे कीजिए सब लोग. ओके, अब आपका एक थंब ऊपर रहेगा, राइट या लेफ्ट जो भी कुछ है, ठीक है ना. अभी दूसरी तरह से कीजिए. जस्ट अभी अगर राइट थंब ऊपर है तो लेफ्ट थंब ऊपर रखने का कोशिश कीजिए और कैसे महसूस होता है देखिए. थोड़ा अजीब लग रहा है.
इतनी छोटी सी चीज में भी हमको थोड़ा अजीब लगता है, तो बड़ी बड़ी चीजें चेंज करने में तकलीफ तो जरूर महसूस होगी. ओके, बट डोंट गिव अप. आई मीन, इफ यू रियली, as you very rightly said, sir, if you practice it, then only it will happen. It will not happen on its own. Initially consciously practice करना पड़ता है, बाद में वो अपने आप हो जाता है. Simple as that. That becomes a habit. The same thing what you told, I am also practicing that. I will ask question, I will learn from others. The very first talk what you told, as an entrepreneur you should take the मदद. तुम जितना मदद चाहे उसके लिए शर्मिंदा मत करो. बिल्कुल. सर वो चीज क्या होगा ना, 3 दिन प्रैक्टिस होने के बाद 4 दिन लगेगा जे अरे पूछूंगा ना नहीं पूछूंगा, पूछूंगा ना नहीं पूछूंगा, यही स्ट्रेटेजी में आ जाते हैं. तो नो, इट इज ए क्लियर मैसेज शुड गो. द प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर लेक्चर व्हाट यू डिलीवर टुडे. सर मेरा एक एडवांटेज जिंदगी में है, मुझे ज्यादा अक्ल है नहीं, तो मैं एक बार अपने दिमाग को बता देता हूँ तो मैं प्रैक्टिस करना चालू करता हूँ. मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ. तो मैं स्ट्रैटेजी करता नहीं हूँ ज्यादा. ये स्ट्रैटेजी बड़ी डेंजरस चीज होती है कि हम लोग हमेशा खुद को इंटेलिजेंटली पूछते रहते हैं. तो कभी तो ऐसा करना चाहिए कि जो अगर मान ली चीज वो करनी चाहिए प्रैक्टिस विदाउट आस्किंग क्वेश्चन. अगर आप करें उसका रिजल्ट मिलने को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप सुखी रहोगे, इतना मैं बता सकता हूँ. यू कैन रिमेन हैप्पी. द पर्पस ऑफ रेजिलियंस इज हैप्पीनेस. If you have a resilience, you will be happier in life. And to my mind, that's the ultimate purpose for anybody. Because some days will be good, some days will be bad, but by the end of the day, you can put your head on the pillow and you can sleep peacefully. That's what resilience is really working for you. Yeah. And the institute has my number. Those of you who have some questions, feel free to WhatsApp me, ask questions. I'll answer them to best of my ability. If I don't know the answers, I'll tell you that also. Then we'll find out answers together. Yeah. Yogesh, very thank you. It was such a heart-to-heart talk, and I'm really very proud of you. I have seen your entrepreneur journey from a VP, Vice President of L&T from Zensar, then to become a founder of your Harmony Consultants. You have gone a very big way through, and I'm really very proud of you. And I hope this session is really our startups must have got benefit of from this session. And anybody else wants to talk? I think Yomkesh, I really I want you to share your thoughts. Yomkesh? Yes, ma'am. हाँ, बोलिए. This was a very wonderful lecture. I'm so inspired. So many things are new. I'm just processing. Because you are working on hydroponics. You are working on hydroponics, and your vision is like very unique vision of hydroponics. Hello, Vyomkesh? Yes. Yes, ma'am. Yes, I can hear. हाँ, आपका विजन जो है बहुत यूनिक है, और मैं समझती हूँ कि आपके साथ शायद कोई ना रहे, आप अकेले रहो. और आपका विजन, जैसे अभी योगेश जी ने कहा कि आपको कैसे डटे रहना है आपकी विजन पे. और आप बताइए, आपकी कोई फीलिंग्स आप बता सकते हैं अभी? I'm processing right now. So many things I have heard. I have noted down everything. Good. Very good. Very good. Just okay. I'm a slow learner, but I learn. I know that. Okay. Thank you. Hemant? And thank you so much for wonderful lecture, sir. Thank you. Yes. Okay, now, sir, we are at the end of our today's session. But one message, sir, you have spread today among our entrepreneur or of us, how to become more resilient, though you are in stress. But resiliency in life is very important, particularly in entrepreneurship life. And sir, one thing I also believe, after pandemic, people are left this PowerPoint presentation nowadays. That's right. People are now more having wisdom. Yesterday lecture was very fantastic. One of our incubator has delivered. He also delivered from his brain and heart. Today I also felt same thing with you, sir. Okay.
this is one of the perhaps the effect of post effect of pandemic. People are not using the PowerPoint slide nowadays. That's Okay, right. sir, really I heard about you a lot from our madam, that my friend is there, but sometimes I also become astonished why he left the job, why he is doing this business. I know your name very, not today, not tomorrow, yesterday. She always keep on telling about you, but sometimes I also questioning myself that why he left so good white collar job and doing this business. But today I came to know that how people are growing. Okay, really, sir, for this, your time, your energy, and your simple, how you are in both Hindi and English, you make us understand the very practical things we have to, not only for the entrepreneurs, but also for all the technocrats, scientists, all sort of life. It is really a practical things we have to practice more. Sir, same lecture we are looking forward on in future also. And whenever we will be in some of the things, we will take definitely your help. Even if I will tell all my incubator to or entrepreneur to set their vision, long-term vision, what you stress upon, they frame and they may share with you how to modify their vision according to their product, according to their process, according to their social innovation, all these things. Thank you, sir. Thank you all who are joining today's session, all the incubator, all the startups, and my friends, those who are mentoring with me in this program. Thank you, sir. Thank you, Jogesh, sir. Thank you. Bye-bye. Thank you, Yogesh. Thank you. Thank you very much. Thank you, Thank you, everyone. everybody. Bye-bye. Thank you, sir.